let's start the lecture. We have seen that f plus f minus they are measurable. The join of two measurable functions and the meet. So that's the fourth to last one. Join and meet. We show that these two f join G and f meet G. They are also measurable. So here we have order on the class of all functions which is defined by say f is a function from x to r. We see these two functions in this class, they are related if and only if fx less or equal to gx for all x in x. So from this class of functions we take two functions f and g, then we say that f is less or equal to g if and only if fx less or equal to gx for each x in x. And with respect to this relation is a partial order on that class of functions. So therefore this class of functions is a partially ordered set. It's a partially ordered set. Now we take the class of measurable functions only, not the class of all functions. We take class of measurable functions and we define the same order. Then the same set, the class of measurable functions, is also a partially ordered set. And we see that this partially ordered set is actually a lattice. It's a lattice. Lattice means the join of any two functions and meet of any two functions belongs to the same class. They are measurable. They are measurable functions. So what's we have these two identities. F join G, it's equal to mod of f plus G plus f plus G. Or it's mod of f minus G, it's mod of f minus G, mod of f minus G plus f plus G. Okay, or it's like this actually, f plus G plus mod of f minus G, and the meet is given by this formula, f plus G minus mod of f minus G, mod of f minus G. You can verify this also. अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहोगे, join means the maximum, okay, the maximum. So suppose fx is less or equal to gx. This equality is actually point wise equality. आपको हर किसी पॉइंट पर चेक करना है कि ये इक्वलिटी होल्ड हो रही है. तो किसी पॉइंट पर fx लेस और इक्वल टू gx होगा, किसी पॉइंट पर fx ग्रेटर और इक्वल टू gx होगा. ओके, so if fx is less or equal to gx, then what's this? F meet G. In that case, it's G, the maximum. And what's this one? F plus G plus mod of f minus G. This is equal to f plus G. Since f is less or equal to G as at this point, so f minus G is minus times f minus, because it's a negative number. F minus G is a negative number, so its mod must be minus times this number. So it should be positive always. So this it's divided by 2, okay? Divided by 2 here. Divided by, sorry, here it's divided by 2. Where it's f join G is equal to mod of f minus G plus f plus G divided by 2, and here it's also divided by 2. और इसमें भी यहाँ पर भी आपके पास है
it's divided by 2. So this thing divided by 2, this f and f will go, and you will see this is equal to g, 2g by 2, that's equal to g. So join is also g. This expression f plus g plus mod of f minus g divided by 2, it is also g, so therefore they are equal at this point. So therefore f by g is equal to f plus g plus mod of f minus g divided by 2. So whenever fx is lesser or equal to gx, then f join g is equal to g. Now if suppose fx is greater or equal to gx, if fx is greater or equal to gx, if f of x greater or equal to g of x, then what's their meet? Then what is fx meet gx? The meet of these two. This is obviously equal to fx, and what's this one? Mod of it's fx plus gx plus mod of fx minus gx. Fx plus gx plus mod of fx minus gx. Divided by 2. This is equal to fx plus gx. Now fx is here, it's greater or equal to gx, so fx minus gx is a non-negative number, so that means its mod is the same number. Mod of this is gx here, plus mod of fx minus gx is fx minus gx divided by 2, and this gx and gx they will go. This is fx plus fx twice fx divided by 2, that's equal to fx. So again this join is equal to this expression, this quotient. So thus f join g, it is equal to f plus g plus mod of f minus g divided by 2. So join का मतलब है maximum, fx greater equal to gx means their join is fx, maximum among these two. इसी तरह से meet means the minimum, तो वहाँ पर भी अब ये दोनों केसेस ले सकते हैं, and you will see the meet identity जो आपके पास है. So we have this thing. एक तो आपके पास है f g equal to f plus g plus mod of f minus g divided by 2, and second is f mid g, it's equal to f plus g minus mod of f minus g divided by 2. ये दो एक्सप्रेशंस आपके पास है, एक तो join की है, second is for meet. And this is measurable because f is measurable, g is measurable, sum is measurable, f is measurable, g is measurable, difference is measurable, and mod of a measurable function is measurable. So everything is measurable in the numerator, and it's the factor is 1 by 2, and a scalar multiple of a measurable function is measurable. So this is measurable, and similarly this meet is also a measurable function. So thus we have proved all the 4 parts of this theorem. Now the next theorem. So आपने result एक किया होगा, if we have a sequence of continuous functions then their limit may not be continuous. वो आपने भी नहीं किया, वो actually आपको इसी semester में है, that's the unit number 1, in which we have you can see that the limit अगर आपके पास होगी ना sequence of continuous function, उसका जो limit function होगी ना वो continuous नहीं होगी. क्या नहीं होगी? Continuous in general नहीं होगी. But here we will see that if we have a sequence of measurable functions, then the limit function is always a measure. The limit is a pointwise limit. Limit is pointwise. Suppose पहले मैं यहाँ पर वो limit ही explain करूँगा. Then we'll go through this theorem. Suppose आपके पास ये है
sequence of functions. This is the sequence of functions. Say x power n divided by n. Okay, and x is greater or equal to 0, or x may be real number. It's a sequence of functions. इसकी ये sequence of functions है f1, मतलब यहाँ पर जो sequence की जो terms है ना वो functions है. Each term of the sequence is a function. It is a sequence of functions. इसको क्लियर कीजिए. जैसे sequence of real numbers होता है, sequence of complex, sequence of rational है ना, वैसे sequence of functions, sequence of functions. अब इस sequence की पहली टर्म क्या है f1 और वो क्या है f1 कौन सी फंक्शन है f1 फंक्शन ये है f1 of x is equal to n is 1 so it's x. इसी sequence की दूसरी टर्म क्या है f2, तो वो फंक्शन क्या है f2x that's x square by 2. इसी तरह से इसकी तीसरी टर्म क्या है f3x that's x cube by 3 so on and so forth. तो ये है sequence of functions और इन ये functions ये है इस sequence की. उसकी पहली टर्म x है, दूसरी टर्म x square by 2 है, तीसरी टर्म x cube by 3 and so on and so forth. Then suppose let's choose x equal to say 2. Choose x equal to 2 suppose. For x equal to 2 we check what's this f1 of 2 it's 2, f2 of 2 what's this is 2 square by 2, f3 of 2 this is 2 cube by 2, 2 cube by 3 and so on and so forth. तो इस पॉइंट पर एक पॉइंट पर मैंने इसको कैलकुलेट किया. अब इसी पॉइंट पर आपके पास एक सीक्वेंस आ गई रियल नंबर्स की, जिसकी पहली टर्म 2 है, सेकंड टर्म 2 स्क्वायर बाय 2 है, थर्ड टर्म 2 क्यूब बाय 3 है. इसी तरह से इसके बाद जो टर्म होगी 2 4 बाय 4 होगी. तो ये आपके पास होगी सीक्वेंस. तो हर किसी जो भी पॉइंट आप लोगे, जो भी पॉइंट आप किसी भी पॉइंट को फिक्स करोगे, हर किसी पॉइंट पर ये जो सीक्वेंस होगी आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इट विल गिव द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हर किसी पॉइंट पर. अब ये सीक्वेंस ऑफ इसका लिमिट आपको चेक करना है. इसका लिमिट क्या, सपोज इसका लिमिट इस पॉइंट 2 पर से कुछ नंबर होगा, से इट्स 5 और इट मे बी इन्फिनिटी, सीक्वेंस में डाइवर्ज आल्सो, और इट मे बी माइनस, इट मे बी प्लस, इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी ऑसिलेट, इट मे बी ऑसिलेट. तो इसका कोई अब लिमिट हम कब कहेंगे सीक्वेंस का लिमिट एक्स्ट होगा, पॉइंट वाइज लिमिट तभी एक्स्ट होगा अगर हर किसी पॉइंट पर इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा. आप जो भी पॉइंट लोगे आपके पास ये सीक्वेंस जो आ जाएगी रियल नंबर, इसका कुछ लिमिट एग्जिस्ट होगा, कोई नंबर आपके पास आ जाएगा. सपोज इस पॉइंट 2 पर इसका लिमिट सपोज कुछ है, से इसका लिमिट 5 है. इसके बाद आप 3 देखोगे, 3 पर कौन सी सीक्वेंस आ जाएगी, आपके पास एक नई सीक्वेंस आ जाएगी रियल नंबर, उस पर भी इसका कुछ लिमिट होगा, से 5 6 होगा. इसी तरह से आप पॉइंट्स को चेंज करोगे, हर किसी पॉइंट पर आपको कोई ना कोई लिमिट मिलेगा. और ओबियसली ये जो लिमिट है ना, ये जो हर किसी पॉइंट पर आपको लिमिट मिले, ये लिमिट ये इस पॉइंट पर डिपेंड, आप पॉइंट को चेंज कर रहे हो लिमिट चेंज हो. और लिमिट हमेशा यूनिक होता है, लिमिट हमेशा ये जो लिमिट होगा ना हर किसी सीक्वेंस का, वो एक यूनिक लिमिट होगा. तो दैट मीन्स फॉर ईच एक्स वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स fnx. आपके पास है सीक्वेंस रियल नंबर्स की fnx, दिस सीक्वेंस, और ये कन्वर्ज हो रही किसी पॉइंट पर, और वो पॉइंट ओबियसली x पर डिपेंड है. आप x को वैरी करोगे वो पॉइंट वैरी होगा, उसको आप डिनोट करोगे fx से, वो होगी फंक्शन x की. वो इसी x की फंक्शन क्यों होगी, क्योंकि हर किसी पॉइंट पर आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा, और हर किसी पॉइंट पर आपको यूनिक वैल्यू मिलेगा, बिकॉज लिमिट इज ऑलवेज यूनिक. So that means this is always a function of x. This is always a function of x, and it's called the point-wise limit of this sequence. इसको हम कहते हैं point-wise limit, क्योंकि हम point to point इसका लिमिट चेक. It's called a point-wise limit. तो यहाँ पर वही कन्वर्जेंस का मतलब है कि point-wise limit एक्चुअली point-wise limit. ये आपको क्लियर हो गया? You can take another sequence. आप कोई और sequence ले सकते. Suppose let's take this sequence. F and x is equal to say x divided by say. Okay, let's see this sequence. Very
let's take this sequence n plus 1 divided by n and then take x where x is in R. मैं ये सीक्वेंस लूँगा फंक्शंस की। तो अगर आपको f1 देखना होगा, व्हाट इज f1? f1 इज n is equal to 1, it's 2 by 1, that's 2x. What is f2? It is 3 by 2x. What is f3? It's 4 by 3x. So this is your sequence of functions. ये है sequence of functions. अब आप इस sequence की पहली टर्म निकालोगे। किसी आप इस सीक्वेंस को कैलकुलेट दिस सीक्वेंस एट से लेट्स से एट x इक्वल टू 5 पर हम इसको कैलकुलेट इसी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे। सो एट दैट 5 व्हाट विल इट विल बी 2 into 5, then it will be 3 by 2 5, and after that it will be 4 by 3 5, then it will be 5 by 4 5, then it will be 6 by 5 5 and so on. ये सीक्वेंस मिल जाएगी 5 पर। तो इसका लिमिट क्या है इस सीक्वेंस का? ये 5 तो फिक्स रहता है ना, 5 चेंज नहीं होगा। आपको देखना है 2 3 by 2 4 by 3 5 by 4 6 by 5 का लिमिट क्या है? इसका लिमिट क्या लग रहा है कि ये किस नंबर की तरफ अप्रोच हो रहा है? अगर मैं x को 5 लूंगा, आपके पास ये सीक्वेंस मिल जाएगी n plus 1 divided by n 5, दिस सीक्वेंस, जिसकी पहली टर्म है 2 5, सेकंड टर्म है 3 by 2 5, सो इसका लिमिट क्या है इस सीक्वेंस का? सर ये आएगा 5। ओके, एग्जैक्टली, इट्स 5। एट x इक्वल टू 5 द लिमिट इज 5। इसी तरह से एट x इक्वल टू 6 लिमिट आ जाएगा 6, एट x इक्वल टू 7 लिमिट आ जाएगा 7, है ना? ये इसी पॉइंट पर चेंज हो रहा वेरिएबल। तो इसकी जो लिमिट फंक्शन है वो fx है और वो x के बराबर है, इसकी लिमिट फंक्शन। बिकॉज 1 पर लिमिट 1 है, 2 पर लिमिट 2 है, 3 पर लिमिट 3 है, 4 पर लिमिट 4 है, और अगर आप इसकी लिमिट फंक्शन fx से डिनोट करोगे, दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू x। इसकी लिमिट फंक्शन fx है, fx इक्वल टू x है। So this is called the point-wise limit. Point-wise limit. Now we come to our theorem. For a sequence fn of measurable functions, for a sequence fn of measurable functions the following statements hold. The following statements hold. First statement is, if fn converges to f, point-wise converges, f इसका point-wise limit है, okay? But it's not f for every x, ये इसका limit है almost everywhere. हर किसी पॉइंट पर ये fx को कन्वर्ज नहीं कर रहा है। ऐसा भी है यहाँ पर सेट ऑफ पॉइंट्स जिसका मेजर 0 है, वहां पर ये कन्वर्जेंस ट्रू नहीं है, वहां पर ये कन्वर्जेंस होल्ड नहीं हो रही है, ओके? Almost everywhere. Then f is measurable. Then f is measurable. And the second one is, if fnx is a bounded sequence for each x, जब मैं fnx की बात करूंगा इसका मतलब है कि नाउ इट्स अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि अब मैंने इसको इवैल्यूएट भी कर दिया। fnx ऊपर मैंने सिर्फ fn लिया था, fn
एफ एन मीन्स इट्स द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, और जब मैं एफ एन एक्स लूंगा दैट मीन्स वी आर टेकिंग द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बिकॉज एफ एन इज आर फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू आर. सो दिस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इट इज बाउंडेड, is a bounded sequence, is a bounded sequence, is a bounded sequence for each x, for each x it's a bounded, that means it's actually point wise bounded. Okay, आप x का वैल्यू कोई कुछ दीजिए, आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस आ जाएगा. आप x का वैल्यू दूसरा दीजिए, आपके पास दूसरी बाउंडेड सीक्वेंस आएगी. इट वेरीज विथ x, it's point wise bounded. And second is the actually uniform bound. Why I am talking about point wise? क्योंकि आपके पास और एक concept है that's called uniform bounded. Uniform bounded sequence, uniform convergence हम आगे देख लेंगे जब हम unit 1 करेंगे. So here we will discuss only point wise. Okay, is a bounded for each x, is a bounded for each x. Then अगर आपके पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस होगी रियल नंबर्स की, नाउ इट्स अ सीक्वेंस ऑफ, इट्स अ बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, उसका जो लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फिमम है वो होगा उसका. हाँ, वो एग्जिस्ट हमेशा होगा. लिमिट मे नॉट एग्जिस्ट बट जैसे जैसे आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस ये है 1 -1 1 -1, इट्स अ बाउंडेड सीक्वेंस है ना, इट्स अ बाउंडेड सीक्वेंस, इट्स अ बाउंडेड -1 power n, इट्स अ बट इट्स नॉट कन्वर्जेंट. बट इसका जो लिमिट सुप्रीमम है और लिमिट इंफीरियर है वो एग्जिस्ट हो रहा है. लिमिट सुपीरियर इज 1, लिमिट इंफीरियर इज -1. ये बाउंडेड सीक्वेंस है. अब मैं दूसरी सीक्वेंस आपको लूंगा, वो भी ऑसिलेट हो रही -1 power n into n. ये सीक्वेंस है -1 then 2 then -3 then 4 then -5. दिस सीक्वेंस आल्सो ऑसिलेट्स बट इसका जो लिमिट सुपीरियर है वो एग्जिस्ट नहीं, बिकॉज इट्स नॉट बाउंडेड एक्चुअली, इट्स नॉट बाउंडेड अबव. So its limit superior is infinity, and it's also not bounded below, क्योंकि -5 है, फिर -7, फिर -9, -11, so on and so forth. It's not bounded below, so therefore its limit inferior does not. लिमिट inferior और लिमिट superior का मतलब क्या है? आप सारे लिमिट्स निकालो, सारे लिमिट पर उनमें से जो सुप्रीमम होगा दैट्स लिमिट superior. और इसकी एक और प्रॉपर डेफिनेशन है लिमिट superior की, वो ये है, आपके पास सीक्वेंस an है, we can always define that limit superior limit. It may be infinity or a finite number, but we can always define it. We can always, for a bounded sequence it is always a real number, but for unbounded sequence it may be infinity plus or minus infinity depending upon whether it's not unbounded above or not bounded below. तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है. तो an अगर sequence होगी, you can define the new sequence, you can define this sequence. You can define this sequence an onwards. Okay, an onwards, an plus 1 an plus 2, इस सीक्वेंस को आप डिफाइन करोगे. ठीक है, an से आगे आपने टर्म्स ली है. ये जो सीक्वेंस है, आप इस सीक्वेंस का क्या करोगे? आप इस सीक्वेंस का लोगे, यू विल टेक द सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस. ओके, सुप्रीमम. सपोज आप n1 लोगे, then you are taking the supremum of a1 a2 a3 so on and so forth. अगर आप n2 दोगे, then you are taking the supremum of a2 a3 a4 so on and so forth. अगर आप n3 दोगे, तो ये किस पर डिपेंड है? ये इसी n पर एक्चुअली डिपेंड है. आप n के वैल्यूज को वेरी करोगी, आपको डिफरेंट सुप्रीमम्स मिल जाएगी. सपोज n इक्वल टू 1 के लिए आपके पास सुप्रीमम a1 आ गया, कैपिटल A1. जब आपने a2 से स्टार्ट किया, सपोज सुप्रीमम a2 आ गया. जब आपने 3 से स्टार्ट किया, जब सपोज सुप्रीमम 3 आ गया, तो आपके पास एक नई सीक्वेंस आ गई, न्यू सीक्वेंस. इस सीक्वेंस का आप लिमिट निकालोगे. क्या निकालोगे? लिमिट. अब इसका हम लिमिट क्यों निकालेंगे? क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, इसलिए हम लिमिट निकालते हैं. लिमिट तो तभी निकाल पाएंगे ना जब इसका लिमिट होगा, देन ओनली वी कैन डिफाइन द लिमिट.
तो मैंने ये ऊपर वाली सीक्वेंस जो ली थी an, मैंने इसका लिमिट तो मैंने नहीं लिया, because it's a general sequence. It may be like this: 1 minus 1 1 minus 1. Its limit does not exist, so we cannot talk about the limit in general for a given sequence, but at least we can talk about this supremum. इस सुप्रीमम से आपके पास एक नई सीक्वेंस आ गई a1 a2 a3 है ना, एक नई सीक्वेंस आ गई. अब इस सीक्वेंस का मैं लिमिट निकाल सकता हूँ. वाई? बिकॉज ये जो सीक्वेंस है a1 a2 जिसकी टर्म्स है, फर्स्ट टर्म a1 है, सेकंड टर्म a2 है, थर्ड टर्म एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये जो सीक्वेंस आपके पास है इट इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस. क्या है? और सीक्वेंस अगर मोनोट्यून होगी, मोनोट्यून मीन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, उसका लिमिट हमेशा हम डिफाइन ले सकते हैं. लिमिट फाइनाइट और इनफाइनाइट, इट डिपेंड्स. फाइनाइट भी हो सकता है, बट लिमिट हम हमेशा हम कैन डिफाइन दिस लिमिट. अगर इनफाइनाइट लिमिट होगा तो उस केस में लिमिट ऑफ एन होगा इनफिनिटी. अगर फाइनाइट होगा तो लिमिट ऑफ एन कुछ नंबर होगा. बट वी कैन टेक ऑलवेज लिमिट फॉर अ मोनोटोन सीक्वेंस इफ इट्स ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. और जो सीक्वेंस है ये डिक्रीज हो रही है, तो अगर ये सीक्वेंस डिक्रीज हो रही है इसका लिमिट होगा. इसका लिमिट सपोज कुछ नंबर होगा, से कैपिटल ए, और ये कैपिटल ए जो आपने लिया है इसी को कहते हैं लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस एक्चुअल सीक्वेंस, जो आपके पास एक्चुअल सीक्वेंस थी. लिमिट सुपीरियर ऑफ द सीक्वेंस. ओके. इसी तरह से आप लिमिट इन्फीरियर को डिफाइन कर सकते. लिमिट इन्फीरियर क्या है? वहां पर आप पहले इन सीक्वेंसेस का इन्फिमम ले रहे हो. क्या ले रहे हो? इंस्टेड ऑफ सुप्रीमम यू आर टेकिंग इन्फिमम. फिर बाबा के पास ये जो नई सीक्वेंस आ जाएगी a1 a2 a3, ये बन जाएगी डिक्रीजिंग सीक्वेंस. क्या बन जाएगी? इंक्रीजिंग. उस केस में डिक्रीजिंग बन गई सुप्रीमम में, बट इन्फिमम लेने से ये बन जाएगी इंक्रीजिंग सीक्वेंस. और इसका जो लिमिट होगा वो आ जाएगा से a, वो होगा लिमिट इन्फीरियर. वो होगा लिमिट इन्फीरियर. और ये इंक्रीजिंग क्यों होगी? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप इन्फिमम ले रहे हो. पहली टर्म जो होगी वो इन्फिमम होगी a1 a2 a3 सो ऑन एंड सो फोर्थ. जो दूसरी टर्म होगी वो होगा इन्फिमम a2 से स्टार्ट आपको करना है. आप सेट्स को बढ़ा रहे हो कि सेट को कम ले रहे हो? कम कर रहे हो ना सेट्स को. जब आप सेट्स को कम करोगे ना, एलिमेंट्स को बाहर निकालते जाओगे, जो इसका इन्फिमम होगा वो कम होगा कि वो बढ़ जाएगा? हाँ, ओबियसली बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास दो सेट्स है. सपोज आपके पास ये है 1 2 3, आप इसमें से कोई एलिमेंट बाहर निकाल के से 1 आप निकालोगे, आपके पास 2 3 सेट है, तो इन्फिमम बढ़ रहा है ना. तो इसका मतलब है कि a1 जो होगा इट इज लेसर इक्वल टू a2, क्योंकि a2 जो है ये किस सेट का इन्फिमम है? वो सेट जो आपने a2 से स्टार्ट किया. a1 किसका इन्फिमम है? जो आपने a1 से स्टार्ट किया. सो इट्स इंक्रीजिंग सीक्वेंस. अगर आप इन्फिमम लोगे, अगर आप सुप्रीमम लोगे, इस केस में डिक्रीजिंग. तो ये हमने डिस्कस किया. ऑल्सो फॉर अ बाउंडेड सीक्वेंस दिस लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर दे आर ऑलवेज अ फाइनाइट नंबर. उस केस में हमेशा फाइनाइट नंबर ही होगी. और यहां पर इसने लिया है बाउंडेड सीक्वेंस ही रियल नंबर्स की. Okay. So if fnx is a bounded sequence for each x, then limit superior of fn and limit inferior of fn, they are functions, because we are here, we have a sequence of functions. So limit superior is a function, limit inferior is a function. So these functions are both measurable functions, are both measurable functions, are both measurable functions.
proof. So first part, we have this thing, Fn converges to F almost everywhere. Almost, this is given. Fn is a sequence of measurable functions. Okay, Fn converges to F almost everywhere. So almost everywhere का मतलब क्या है? एक ऐसा सेट है से A जहां पर एक कन्वर्जेंस नहीं है, उस सेट का मेजर जीरो है. उस सेट का मेजर क्या है? जीरो. सो लेट्स टेक ए बी एस सेट जहां पर कन्वर्जेंस है, जहां पर एक कन्वर्जेंस होल्ड हो. लेट ए बी एस सेट x in x such that limit of fn x is equal to fx. fn converges to f. ओके, वो पॉइंट्स जहां पर ये कन्वर्जेंस है वो सारे एक्सेस. सो देन व्हाट्स ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? रोल नंबर 8. हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में आप क्या बता सकते हैं? एफएन कन्वर्जेंस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर. मैंने ए सेट ये लिया जहां पर ये कन्वर्जेंस है, जहां पर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है. तो व्हाट अबाउट ए कॉम्प्लीमेंट? कोई आप में से? कोई ऐसा पॉइंट एक्स का जिससे कि हाँ, तो ए कॉम्प्लीमेंट वो सेट है जहां पर कन्वर्जेंस नहीं होगी. ओके, तो वो है ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, और इस ए कॉम्प्लीमेंट का मेजर क्या होगा? जीरो. ओके, देन this mu star of A complement is equal to 0. So therefore A complement क्या होगा फिर? Therefore A complement is measurable. A complement is measurable. Okay. So what about A? Roll number 7. A measurable होगा? जी सर, सर हम कर सकते हैं ना, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू Okay, good. Hence A is measurable. तो ये जो सेट है जहां पर एक कन्वर्जेंस है वो भी मेजरेबल है, और वो सेट जहां पर कन्वर्जेंस नहीं है वो भी मेजरेबल है. बोथ द सेट्स आर मेजरेबल. आपको प्रूव करना है एफ इज मेजरेबल. ओके, क्या करना है? प्रूव एफ इज मेजरेबल. तो उसके लिए हम प्रूव करेंगे ये, लेट ए बिलोंग्स टू आर. we show that the inverse image of this interval a to infinity is measurable. अगर हमने प्रूव ये किया ना, तो वो थ्योरम जो आपने की है ऑलरेडी है, जहां पर वो इक्विवेलेंट फॉर्म्स है मेजरेबल फंक्शन के, तो वहां से ये आ जाएगी कि एफ मेजरेबल है. एफ मेजरेबल, इसको हम प्रूव करेंगे. दिस सेट the inverse image of the interval a to infinity is measurable. Okay, this is measurable. ये करने के लिए we first verify the following identity. We first verify the following identity. We first verify the following
identity. What's the identity? Identity is this: A intersection F inverse A to infinity is equal to A intersection square bracket union n runs from 1 to infinity, then intersection I runs from n to infinity, and we have Fi inverse of the set A plus the interval A plus 1 over n to infinity. ये हमें प्रूव करना है। लिस्ट दोनों सेट्स है, बोथ आर सेट्स। आपको